Hi everyone, welcome to Goldtide Prelims IAS Academy and UPSC 2021 prelims result. Okay, so we will celebrate later. Our results are very good. It's very surprising also, and I didn't expect such a good result. And I will inform about the students who have cleared this UPSC prelims. But what I felt is important to address the student who have not able to make through UPSC prelims 2021. Okay. The first and the most important thing right now is to accept that you have failed UPSC prelims 2021. Okay. Because there was some issue with you and you failed. Okay. It's not always about, what I feel is like if 95 is the cutoff, okay, if you don't score, okay, then only like this is a good result, right? If you score 96, 97 and less than 100, okay, this is something is not a good result, but the day was yours and you have cleared the examination. But what I expect is like if you are not scoring this number, then it's not your good result. But those who have made through, it's like you are lucky ones. Means those who have scored less than 100 and they have made through the prelims. But those who have not made through, okay, I just want to discuss few important points, and I don't want to waste time, but I give you to maximum. I want to give you maximum output. Okay, so why you fail in prelims examination? It's very important for you people to understand why you people fail in prelims examination. आप बार बार इतनी मेहनत कर रहे हो, कंसिस्टेंटली डे एंड नाइट यू आर वर्किंग, आपने टेस्ट सीरीज सॉल्व किया है एंड अगेन यू आर फेलिंग इन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. आई विल जस्ट टेल यू देयर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज बिफोर एग्जामिनेशन and during examination. This is I'm just talking about the prelims examination. One is before examination and one is during the examination. What all mistakes you do, and you just see in which category you fall, and then you just try to work on it. Okay, this is very much important that once you fail, you have to analyze and see what mistake you have done and where you have done, and you have to work on those areas. Then only there is like a meaning to give next attempt. Okay, otherwise you are just wasting 2 years, 3 years, 4 years without changing and improving on your problems and your faults. Everything you have to see. Okay, so first of all what we will discuss is before exam issues. Okay, what all mistakes you do before examination, and this is for the freshers also, and those students who failed, definitely for them. First important thing is your poor learning. You are focusing more on completing the syllabus rather focusing on the topic, getting clarity about the topics, going deep inside the topic and learning more and relevant things. Okay, आप पढ़े जा रहे हो, आपकी रीडिंग इतनी ज़्यादा वीक है कि आपको सिलेबस ज़्यादा कंप्लीट करना है. आपको समझ आ रही हो या ना आ रही हो, आपका रीडिंग, आपका फाउंडेशन, आपका बेसिक्स इतना वीक होता है. एंड इन द लेटर फेज ऑफ द एग्जाम, बिफोर एग्जामिनेशन, जब जैसे जैसे एग्जाम नियर हो रहे हैं, आता है एग्जाम पास आता है, यू आर ट्रैप, लाइक आपके स्कोर नहीं आते एंड देन यू कांट डू मच चेंज अबाउट इट. लाइक आपने ऑलरेडी वो लर्निंग जो टाइम था आपको फाउंडेशन बनाने में, वो टाइम को आपने इधर वेस्ट कर दिया. जो मन में आया पढ़ रहे हो, समझ में आ रही है, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, यू आर स्टिल रीडिंग, यू आर जस्ट आई हैव कंप्लीटेड पॉलिटी, आई हैव कंप्लीटेड लक्ष्मीकांत, लाइक यू नेवर कंप्लीट एनीथिंग इन यूपीएससी, राइट? तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एक लर्निंग है, राइट? दोज फ्रेशर्स, आई एम जस्ट सेइंग ऑन द फ्रेशर्स, और जो इस बार एग्जाम में फेल हुए हैं, विच एवर टॉपिक्स आपको एक क्लैरिटी नहीं है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी हो या फिर सिटीजनशिप हो
या फिर कोई भी फंडामेंटल राइट्स हो पॉलिटी में, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको आप अच्छे से पढ़ो और एक बेसिक अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करो। सबसे पहले इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बेसिक्स इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे करो। ऑल क्वेश्चंस आर बेसिक। और पॉलिटी इकोनॉमिक्स लाइक अगर वहाँ पे आप गलतियाँ ज़्यादा कर जाते हो तो फिर उसके बाद कुछ चांस बचता नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग देन बिकम्स न्यू, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर न्यू टू यू देन आफ्टर दैट। ठीक है, हिस्ट्री न्यू होता है, आपका साइंस टेक न्यू हो जाता है, बट दिस इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी आर द ओनली सब्जेक्ट्स जहाँ पे आप हर टॉपिक को कहीं ना कहीं फेस किए होते हो। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज सबसे बड़ी गलती आप ये करते हो कि आप पढ़े जा रहे हो, बस सिलेबस कंप्लीट किए जा रहे हो, पर आप ये नहीं देख रहे कि जो आप पढ़ रहे हो दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू। लाइक वो चीज आपके एग्जाम में वो काम आ रहा है कि नहीं। लाइक आपने अगर प्रियम्बल पढ़ा है एंड यू आर नॉट सॉल्विंग क्वेश्चंस, तो आपको कैसे पता चलेगा जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपके रेलेवेंट में है कि नहीं, वो उसका कुछ रेलेवेंस है कि नहीं, है ना। आप जो प्रियम्बल पढ़ रहे हो और उस प्रियम्बल से कोई क्वेश्चंस अगर आते हैं वो सॉल्व करो आप, राइट। अगर आप वो सॉल्व नहीं करते हो और नहीं कर पाते हो, इट मीन्स कि आपने जो पढ़ा है प्रियम्बल आपका वो आधा अधूरा है। आपको सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा कि प्रियम्बल उसको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपने उसको पूरा याद कर लिया एंड दैट ओवर। आप हमारे जस्ट गो एंड सॉल्व द टेस्ट 2 GS टेस्ट 1 ऑफ दिस ईयर गोल्ड टाइड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। आप प्रियम्बल के क्वेश्चन वहां सॉल्व करके दिखाओ। ओके, दिस इज अ सेकेंड थिंग। तो आपकी एक प्रैक्टिस है वो इतनी ज्यादा पुअर है, इट्स लाइक काइंड ऑफ व्हाट आई फील इज लाइक कि प्रैक्टिस नहीं करते हो आप लोग। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो, पढ़े जाते हो, एंड दैट्स द रीजन कि एग्जाम जब आता है तो आप वो एक सिंपल क्वेश्चन भी रहेगा, यू विल फील लाइक कि वो नहीं हो पा रहा है बिकॉज आपने प्रैक्टिस नहीं करी होती है। ओके, सो पुअर प्रैक्टिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन कि आप एग्जाम में फेल होते हो। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप प्रैक्टिस भी करते हो, आप रीड भी करते हो, यू स्टिल फेल। ठीक है, आपकी गलती यहां पे कम है बिकॉज आप गलत सोर्सेस चूज करते हो। आपकी प्रैक्टिस जो हो रही है वो गलत सोर्सेस से हो रही है, एंड आई फाइंड नो एक्सक्यूज और एनी सॉरी फॉर एनी इंस्टीट्यूशन, दे आर रियली नॉट डूइंग अ गुड फॉर यू पीपल। ओके, वो इतना ज्यादा इश्यूज कर रहे हैं आपको जो रिक्वायरमेंट है एग्जाम की, वो गैप, आपका जो गैप है जो एग्जाम में पूछ रहे हैं और जो वो मार्केट में पब्लिश कर रहे हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, तो गैप इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है कि इट हैज़ रियली बिकम अ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर एन एवरेज स्टूडेंट कि वो एग्ज़ाम क्लियर करे, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू विल रिलाई ऑन द कोचिंग जहाँ पे जिनका नाम बहुत ज़्यादा है, राइट। आप उनके पेपर सॉल्व करते हो, यू नो वेरी वेल, आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स। और उस पेपर को सॉल्व करने के बाद क्या आप एग्जाम में कुछ भी रेलेवेंस पाते हो उसको सॉल्व करने के बाद? क्या आपको लगता है उस टेस्ट पेपर को सॉल्व करके क्या आपको एक बार महसूस नहीं होते कि आप उसको जब करते हो वो सिर्फ फैक्चुअल थिंग है, आप कुछ ना सोच रहे हो, या तो आपको वो आता है या फिर नो, यस और नो। आपको वहाँ पे एक थिंकिंग प्रोसेस, आपका एक सोचने का तरीका, टॉपिक्स को कनेक्ट करने का तरीका, एवरीथिंग इज लॉस्ट, कुछ नहीं है वहाँ पे। And that's what gold tide comes into picture. Okay, so those who are following me, I don't need to explain this why gold tide here becomes very very important. Okay, the fourth important thing adds a new addition to this is your CSAT. Yesterday I received around 15-20 messages just because they failed in CSAT. They were not able to make through GS paper 1 prelims. उनका GS में अच्छे स्कोर हैं but they failed in CSAT. CSAT is not an easy game anymore. Okay, इसको क्लियर करना है तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बिकॉज ये एग्जाम CSAT का आप एक तो सबसे पहले अपना लेवल चेक करो
प्रीवियस ईयर पेपर से, वेदर यू आर एबल टू स्कोर गुड और नॉट। अगर आप 60, 70, 80 के बीच में स्कोर कर रहे हो, इट मीन्स आप एग्जाम में फेल होने का आपका पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। यू शुड बी स्कोरिंग अराउंड 85, 90, 100 एबव इन योर मॉक टेस्ट एंड ऑल। अगर आप ये 60 और 80 के बीच में लाई कर रहे हो, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फेल इन CSAT। Definitely you are going to fail in CSAT, and I consistently warned you कि आप CSAT करो, हाफ एन आवर करो, लेकिन आखिरी में लाइक उनका अपना विषय, राइट? So this is what I feel bad about the students, those who have cleared paper 1 but they failed in paper 2. So this is the latest and the most important addition why before examination this CSAT plays a very important role. The students are not able to clear UPSC prelims examination. तो आप अपनी रीडिंग अच्छी करो, आप प्रैक्टिस करो। इनिशियल फेज में तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो किसी भी कोचिंग का, राइट? देखने के लिए कि वट एवर यूर रीडिंग इट्स यूजफुल और नॉट। देन यू हैव टू चूज द राइट टेस्ट सीरीज, राइट डेली क्विज फॉर योर प्रैक्टिस, जहां पे आपको मेहनत लगे, आपको सोचने का एक जरिया मिले, आप उसको कोशिश करो कि आपको वहाँ वक्त लग रहा है, आपको वहाँ पॉज लेना पड़ रहा है, एंड देन दिस इज दैट्स व्हाट द टेस्ट सीरीज इज अबाउट, एंड द फोर्थ इज योर CSAT. Okay, so these are the problems you are facing before prelims examination, the reason you are not able to clear exam. Just see in which category you fall. Okay, second important category is during examination. Okay, जो भी मैंने बिफोर एग्जामिनेशन के 4 रीडिंग या टेस्ट प्रैक्टिस CSAT, that all creates a lack of confidence in you before examination. प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, ये नहीं पढ़ा है मैंने अच्छे से, CSAT नहीं पढ़ा है, पता नहीं एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं, एंड बिफोर एग्जामिनेशन ओनली द हाफ ऑफ 50% तो आप ऑलरेडी हार चुके हो ये एग्जाम। और यूपीएससी के एग्जाम देने जैसे बैठोगे द प्रेशर विल क्रिएट ये 50% को, जहां ये 70, 60 क्रॉस हुआ, गॉन, एवरीथिंग ओवर फॉर दैट ईयर. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए जो प्री एग्जाम की तैयारी है, जो भी मैंने 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं, उस पर आप बहुत अच्छे से वर्क करो. ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है ड्यूरिंग द एग्जाम इज सिली मिस्टेक्स. ये सर सही कर सकता था, ये क्वेश्चन मैं सही कर सकता था, 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं सही कर सकता था या कर सकती थी, एंड वी आर नॉट एबल टू मेक थ्रू बिकॉज ऑफ दीज सिली मिस्टेक्स. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि यू हैव डेलिबरेटली रूइंड योर लाइफ. ठीक है, आपको आदत, एक यूपीएससी में तो ऐसी इतनी कम चीजें जो आपको आती होगी, सब कुछ नया होता है वहां पे. लाइक हार्डली देयर विल बी क्वेश्चंस विच यू नो, विच यू हैव सीन बिफोर, और उसमें से भी जो आते हैं उसमें से भी आप ये मिस्टेक्स कर दे रहे हो, देन इट्स लाइक आप सोच के देखो, 1 2 ठीक है, 4 5 6 करके आ गए मिस्टेक्स, खत्म, उधर ही गेम खत्म, ओवर. यू विल नॉट बी एबल टू मेक थ्रू. ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज एग्जाम देते समय, एग्जाम से पहले आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, आप मिस्टेक्स भी नहीं कर रहे हो, आपने तैयारी भी अच्छी कर रखी है. एग्जाम का प्रेशर, द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, क्या आपको पता है? आपने पेपर देखना जाके जो कट ऑफ 95 मार्क्स 96 मार्क्स, उसको आप इजीली स्कोर कर सकते हो. क्वेश्चंस हिडन होते हैं. टाइम मैनेजमेंट, यहीं पे आप सारे कैटेगरी, टाइम मैनेजमेंट ही नहीं है, स्पीड, क्वेश्चन सिलेक्ट करना कैसे है. एक स्टूपिड सा क्वेश्चन रहेगा, उसमें आप टाइम वेस्ट करो. टाइम, ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के डालते हैं वो. उनका पर्पस ये नहीं कि आप उनको पता है कि आपको नहीं पता है वो. दे सिंपली वांट टू वेस्ट योर टाइम एंड क्रिएट प्रेशर. आपकी तैयारी भी अच्छी होती है, आप कॉन्फिडेंस भी होते हो, यहाँ पे जाके
like 50% of the good students fail. इनसाइड एग्जामिनेशन वो प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते, वो टाइम नहीं कर पाते, वो पैटर्न को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, स्पीड खत्म हो जाती है उनकी, और उनका दिमाग एक अलग लेवल पे चला जाता है. नाउ आई एम गोइंग टू फेल, पता नहीं एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं, बबल भी कर रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं साथ में, और डेफिनेटली फिर प्रॉब्लम होती है एंड दे फेल. ओके, एंड द लास्ट थिंग इज रिविजन. पढ़ना कम है, अप्रोच लर्न करना है ज़्यादा. कितने क्वेश्चंस आपके पढ़े हुए आए एग्जाम में, सोच के देखो किस कोचिंग से आए हैं. लाइक आई नेवर से मेरे कोचिंग से इतने क्वेश्चंस आए, बिकॉज दैट शुड नॉट बी क्राइटेरिया फॉर एनी स्टूडेंट. आप उसको ये कह के उसको गलत गाइड कर रहे हो. एनी कोचिंग वो क्या पहले कह सकते हैं आपको कि इतने क्वेश्चन मेरे कोचिंग से आएंगे आप ज्वाइन करो? वो नहीं कह पाएंगे ये बात. दे ओनली से आफ्टर द पेपर कम्स आउट, फिर जाके वो मैच करते हैं और लिंक से भी क्वेश्चंस, दिस क्वेश्चंस केम फ्रॉम माय कोचिंग एंड ऑल. दिस शुड नॉट बी द क्राइटेरिया. द क्राइटेरिया शुड बी कि एग्जाम से पहले यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एग्जामिनेशन और नॉट. आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, आपने अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है कि नहीं, आपकी सोच बढ़ी है कि नहीं, आपके मार्क्स बढ़े हैं, आपका समझने का तरीका, आपका अप्रोच, लर्निंग सब चेंज हुआ, एंड दैट क्रिएट्स अ गुड एटमोस्फेयर. आपका एक इनर स्ट्रेंथ बढ़ाता है. सो इट्स अ काइंड ऑफ रिवीजन. व्हाई आई हैव मेंशन्ड हियर, बिकॉज आपको पढ़ना लिमिटेड ही है, लेकिन एक जो अप्रोच है खुले दिमाग से क्वेश्चन अटेंड करना. इस वक्त जब आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर रहे हो गोल्ड टाइट का, यू शुड नॉट बी थिंकिंग टू मच. सही हुआ, आप सोचो आपकी जहां तक वो नॉलेज है. We'll discuss about test series कैसे प्रोसीड करना है all. Okay, so these are the few important things. और इसमें अपने आप को just try to put आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो and in which category you are falling. आप वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हो and work on this. Okay. सो जिसके फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट दे फेल्ड, जस्ट बी रिलैक्स. एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट देके आप पूरी लाइफ टाइम के लिए आप जो फ्री होना चाह रहे हो, द प्रॉब्लम विल स्टार्ट ओनली व्हेन यू स्टार्ट कंपेयरिंग कि उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, आई डिडंट एबल टू क्लियर, देयर इज अ प्रॉब्लम इन मी. नो, प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि आपका अप्रोच, आपके वहां तक अभी तैयारी नहीं हुई है. और फर्स्ट टू सेकेंड अटेम्प्ट में ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो आप ऐसे ही देने चले आते हो, एंड दिस इज अ सीरियस अटेम्प्ट. यू स्टार्ट विद दिस, तो 1-2 साल लग जाते हैं, राइट? दिस इज नॉट अ वेरी बिग डील. यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखो, वर्क ऑन इट, एंड प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क. ओके, थैंक यू सो मच.